Hello students, good morning. I am Kusragar sir, back to you teaching today a new topic known as derivatives. So I will write the name here, derivative. Derivative means it comes under a new branch of mathematics known as calculus. Derivative is given to the world by Newton, the famous physicist or mathematician, great scientist, great amount of research. During his research, he wanted solution to some problems, so he went on to invent, or what you call, derivative. Okay. So derivative. Before we start, let us try to understand the basic of derivative. Though the definition and all is not there for you people, but what is derivative, why we are doing, you should know. You know function y equal to f of x, we say that y is a function of x. In other words, y depends on x, y is related to x, and there is some relation between y and x. If you draw a graph, this is the x-axis and this is the y-axis. Agreed? And let us draw some function. This is the function. ये formula है, ये उसका graph है. Now look here. That suppose value of x changes from point x1 to x2. So this is called delta x. We call it change in x. A very small change in x. X changes by a very small amount. It was here, now it has come here. As x has changed, y being function of x, y will also change. Now what is change in y? When x was here, this was value of y, and when x has new value has reached here, this is the new value of y, and this is called delta y. Delta y का मतलब है change in y. Understood? So delta x is change in x and delta y is change in y. Okay, so as I told you, so this is a function, y is a function of x, and we have plot a graph, some graph we draw, any graph will work. Then x continuously changes, so y will also continuously change. We are moving around the graph. So let small change in x be there, delta x. Delta x is a change in x, small है, and delta y is corresponding. क्या बोलते हैं? Corresponding, because y is a function of x. So when x will change, y भी हौले हौले उसके पीछे धीरे धीरे चेंज होगा. Corresponding, चूंकि x बदला है, y बदलेगा. Now, if you take limit, now this limit topic is removed from your syllabus, unfortunately. But I have to define derivative. I must teach you with limit, tell you. Limit delta x tend to 0. Please look here. We are taking a limiting value, delta x tend to 0, delta y by delta x. Very small. Delta means a triangle we call, and the triangle means change in y and change in x. If we divide change in y upon change in x, provided change in x is 10 to 0, बच्चे इसका मतलब डेल्टा x 10 to 0 मतलब डेल्टा x is very small, is very near to 0, यानी डेल्टा x से बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना छोटा है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे. तो डेल्टा x जब बहुत छोटा होगा, नेचुरल डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको बुलाते हैं बच्चों dy by dx. क्या लिखा मैंने? dy by अपॉन dx, और इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y with respect, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव क्या है?
change in y upon change in x, where change in x is very very small, and that ratio is called derivative. डेरिवेटिव का बहुत महत्व है. कैलकुलस शुरू किया अभी हमने, मैथ्स की बड़ी ब्रांच है कैलकुलस, और डेरिवेटिव का अनगिनत. शेयर मार्केट से लेके फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरी मशीनरी, सिविल, एवरीवेयर इट इज यूज्ड. कंप्यूटर्स, एवरीवेयर इट इज यूज्ड. सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. कैसे दिखाते हैं हम? dy by dx. तो y अगर f of x है तो y की डेरिवेटिव होती है dy by dx, और f of x की डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? f dash x. f के सर के टिक्का f dash x. f dash x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x. तो फंक्शन है, उसको एक तो f of x बुलाएंगे तो उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी f dash x. फंक्शन को y बुलाते तो डेरिवेटिव हो जाती है dy by dx. अंडरस्टूड? ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है. कितनी समझी कितनी नहीं, इतना छोटा है उसमें आपको क्या समझेगा? हाँ, एक कुछ है, लिमिट है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मालूम होना इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव को किसी ने डिफाइन किया है, और इस डेफिनेशन के मदद से हम रेडीमेड फॉर्मूले लेके आएंगे. ये डेफिनेशन कहाँ यूज होता है? डेरिवेटिव के फॉर्मूले बनाने में. हम लोग उसको डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले यूज करेंगे. हम लोग फॉर्मूले प्रूव नहीं करेंगे. ये फॉर्मूले प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ नहीं है सिलेबस में, तो बिल्कुल प्रूव नहीं करेंगे. अगर आपके कोई दोस्त 11, 12 साइंस या कॉमर्स ले रहे, उसमें उन्होंने मैथ्स लिया है, तो उनको जरूर इसके प्रूफ रहेंगे. डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. उनको पूछो आपको बता देंगे प्रूफ्स. हमें वो नहीं है. तो ये मैंने इंट्रोड्यूस किया डेरिवेटिव का डेफिनेशन. उसके मदद से हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले दूसरों ने प्रूव किए हुए यूज करेंगे, जिसकी लिस्ट में आपको देने वाला हूं. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. आप मेरे साथ रहिए, मजबूती से रहिए, अटेंड करिए ऑल लेक्चर्स, तुरंत प्रैक्टिस करिए. मैं जितने लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, सबके सब आप पहले कॉपी करो दूसरा नोटबुक में, उसको देख के लिखो, या बिना देख के लिखो. जब तक बिना देख के नहीं आता तब तक देख के लिखो. वो आपका एम्पल प्रैक्टिस विल लीड यू टू सक्सेस. अंडरस्टूड? सो प्लीज टेक डाउन. Now students, let us study formulae of derivative. Okay? एक एक फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा, आपसे रटवा दूंगा, इधर ही. इंटरेस्टिंग है. सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव को हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स. उसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये कौन है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई. डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. d by dx of v, and derivative of v with respect to x, with respect to, okay, इसको बोलते हैं. उसको dy by dx भी बोलते हैं शॉर्टकट में. बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, सबसे पहला फॉर्मूला. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है n x रेज टू n माइनस 1. उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे जानबूझ के. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a, बुक मध्ये a नसतो, आम्ही a म्हणतो. क्या फॉर्म्युला आहे? a x रेज टू a माइनस 1. इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4. बच्चों, x एक की जगह 4 है, और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a x रेज टू a माइनस 1. तो ये क्या होगा? 4x रेज टू 4 माइनस 1, 4x रेज टू 3. Derivative of x raised to 2, 2x raised to 2 minus 1, 2x raised to 1. Derivative of x raised to 1, 1x raised to 1 minus 1, x raised to 0. What is anything raised to 0? 1. So derivative of x raised to a से मुझे कुछ शॉर्टकट मिले जो मुझे याद रखने हैं. शॉर्टकट्स. This will be with you in the video. पहला है डेरिवेटिव ऑफ x. अभी हमने देखा, इसको फॉर्मूले मत आते टाइम पे मत तैयार करो, इसको रेडीमेड यूज करो. डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1. दूसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट x.
बच्चों रूट एक्स का मतलब है एक्स रेस टू 1/2। क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 1/2? 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स रेस टू 1 माइनस 2 माइनस 1/2, 1/2 एक्स रेस टू माइनस 1/2 नीचे आया तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 एक्स रेस टू 1/2 क्या होता है? रूट एक्स। इतने सब स्टेप आपको बचाने हैं, उसको डायरेक्ट यूज करो। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अंडरस्टूड? उसको डायरेक्ट आपको याद करना है। क्या याद करना है? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है बच्चों? 1/2 रूट एक्स। उसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x को ऊपर लेके आप करते हैं x रेज़ टू -1 तो होगा -1/x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1/x यानी x रेज़ टू -1 क्या होता है? -1 x रेज़ टू -1 -1 x रेज़ टू -2 -1 अपॉन x रेज़ टू 2। ये देखो, सो इसको डायरेक्ट यूज करो। डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला है d, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। बच्चों कांस्टेंट छोटा हो या बड़ा, डेरिवेटिव क्या होती है उसकी? 0। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1942 लव स्टोरी पिक्चर था 0, डेरिवेटिव ऑफ 2021 0, डेरिवेटिव ऑफ cos 100, अरे भैया 100 कांस्टेंट तो cos भी कांस्टेंट, क्या आएगा? 0। तो ये सब की डेरिवेटिव 0 है। कांस्टेंट छोटा हो या बड़ा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू a टापरी a x रेज़ टू a -1, इससे हमें 4 गिफ्ट मिले, 4। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। कैसे लिखते हैं डेरिवेटिव? माने d/dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा उसका मतलब है। ये k है, कांस्टेंट है। फिर एक बात देखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू a x रेज़ टू a -1, इससे हमें 4 गिफ्ट मिले। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x e रेज़ टू x, acting little, acting small, derivative of e raised to x e raised to x. Now what about derivative of a raised to x? a raised to x into log a, यानी e के जगह कुछ और है, फंक्शन में e के जगह a है, कांस्टेंट ही है दोनों, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x a raised to x, बट डेरिवेटिव ऑफ a raised to x a raised to x, मुझे और कुछ कहना है, a raised to x log a, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x क्या है? a raised to x log a। क्या एग्जांपल है उसका? डेरिवेटिव ऑफ 4 raised to x, अगर ये e raised to x है तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x क्या है? e raised to x। बट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x? a raised to x log a। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 raised to x? 4 raised to x log 4। What is derivative of 6 raised to x? 6 raised to x log 6। What is derivative of 100 raised to x? 100 raised to x log 100। तो आप बोलेंगे सर e raised to x का क्या लिखेंगे? e raised to x log e लिखा तो चलेगा क्या? बोलो, जैसा a वैसा e भी कांस्टेंट है, तो e raised to x का डेरिवेटिव क्यों ना e raised to x log e लिखे? बट ये नालायक लॉगी डॉगी क्या होता है? अरे भैया लॉगी क्या होता है? 1, e raised to x into 1, आंसर क्या आया? e raised to x। तो आप e raised to x log e लिखने से अच्छा e raised to x का डेरिवेटिव लिखने का e raised to x, बट a raised to x का क्या है? a raised to x log a। 6 raised to x का डेरिवेटिव 6 raised to x log 6, अंडरस्टूड? फिर एक बार रिवीजन मारो, डेरिवेटिव x raised to a, देखो दोनों में फर्क, x raised to a का a x raised to a -1, और व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ a raised to x? a raised to x log a, दोनों में फर्क देखो, एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों में फर्क देखो। डेरिवेटिव ऑफ x raised to 7 7 x raised to 7 -1, बट
डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू एक्स इज 7 रेज टू एक्स लॉग 7. फर्क देखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 x रेज टू 7 minus 1, but derivative of 7 raised to x log 7. ये फर्क देखो, अंडरस्टूड और नॉट? वेरिएबल कांस्टेंट का ये सेकंड है, ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और उसमें और एक है तीसरा, dy dx ऑफ log x. बच्चों log x का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन log का बेस कौन होना चाहिए? e. हमेशा log का बेस क्या होना चाहिए? e. और आपने नहीं लिखा तो भी क्या माना जाता है? e. लेकिन मैं लिख के बताता हूं, लिखा तो पढ़ो मत. डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस e 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस e नहीं, गड़बड़ होता है. e साइलेंट रखो. डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, बेस क्या होता है? e. ओके, इस प्रकार से हमने 3 मेन फॉर्मूले देखे. आपका चौथा लाडला है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले. बच्चों कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिक. मैं 6 रेशियो लिखता हूं. डेरिवेटिव ऑफ sin x dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ tan x, dy dx ऑफ cot x, dy dx ऑफ sec x and dy dx of cosec x. ये 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के. एक चीज मैं आपको गम्मत बताना चाहता हूं, देखो उसमें 3 रेशियो में c आता है. कौन आता है? c. और c के आंसर में माइनस साइन आएगा. क्या साइन आएगा? ये आप ध्यान से देखो. c से शुरू होने वाले 3 रेशियो है, cos cot cosec, उनका आंसर क्या है? माइनस है. अब मैं एक्चुअल आंसर लिखता हूं. sin x का डेरिवेटिव है cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x. वो जो sin का डेरिवेटिव cos है तो cos का sin है, पर मैंने पहले बोला c वाला, इसलिए माइनस गिफ्ट करो. sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का माइनस sin x. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. देखो फुलपाखरू उड़ रहा है, स्क्वायर 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 दिख रहा है क्या? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. अब tan का भाई cot और sec का भाई cosec, तो जब tan की जगह cot आएगा तो sec स्क्वायर की जगह क्या आएगा? cosec स्क्वायर x. बस जैसे रेशियो c से शुरू होता है, आंसर में बिना बोले क्या देखो? माइनस. आपको याद रखने के लिए वो है, ये प्रूव करके आया है. आपको याद रखने के लिए मैंने क्या बोला? c वाले में माइनस साइन लिखो. तो tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x. अब sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x tan x. क्या है बच्चों? sec x tan x. जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. ऐसे शॉर्ट बात है ना बैट्समैन, sec x tan x. sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x tan x. मैं क्लासरूम में पढ़ा तो मजा आता है. वो लकड़ी का ये होता है ना, उस पे आप पैर दबाते तो आवाज आता है, मस्त म्यूजिक तैयार होता है. sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. तो cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x. जब sec के जगह cosec आता है तो sec के जगह cosec, tan के जगह cot. अंडरस्टूड? ये ट्रिग्नोमेट्री वाले कौन से? sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का c वाले माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x. अंडरस्टूड? इस प्रकार से है वो. नोट, मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था, डेरिवेटिव ऑफ c इज नेगेटिव. ये कोई मैथ्स का रूल नहीं है, ब्रिलियंट क्लास का है. आपको याद रखने के लिए इधर मैंने बताया है, जो जो c वाले हैं उनके आंसर में क्या आता है बच्चों? माइनस साइन आता है. फिर एक बार देखो, x रेज़ टू a का डेरिवेटिव a x रेज़ टू a माइनस 1. इससे हमें 4 गिफ्ट मिले, इसके मदद से 4 फॉर्मूले फ्री.
x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a, और log x का डेरिवेटिव सिट डाउन 1 by x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव c है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। बच्चों इनवर्स है फिफ्थ वाले में बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x थोड़े विचित्र है इसलिए याद भी रहेंगे, 1 by root 1 minus x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या है? 1 by 1 root 1 minus x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x क्या है? बच्चों एक के साथ एक बिल्कुल फ्री है, जैसे कि ये c से शुरू होता है तो आंसर में क्या आएगा? माइनस, आंसर वही 1 by root 1 minus x स्क्वायर। फिर एक बार देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या है? 1 by root 1 minus x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x क्या है? सेम है, खाली माइनस है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 by 1 plus x square. So what is derivative of cot inverse x? बच्चों c आया, रे आया, लोगो रे लोगो, c आया तो क्या आएगा आंसर? माइनस 1 by root माइनस 1 by सॉरी सेम आंसर 1 plus x square. So tan inverse x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by 1 plus x square, याद रखना पड़ेगा। So cot inverse x का माइनस 1 by 1 plus x square। अब हमारे दो और बचे, डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x 1 by x root x square minus 1। थोड़ा विचित्र है लेकिन याद रहेगा। So what is derivative of cosec inverse x minus 1 by x root x square minus 1। एक के साथ बच्चों एक बिल्कुल फ्री है इनवर्स में, एक ही याद रखना है, दूसरा खाली माइनस है। c वाले डेरिवेटिव ऑफ c इज नेगेटिव। सो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by root 1 minus x स्क्वायर। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? जस्ट माइनस 1 by root 1 minus x स्क्वायर। जरा जोरदार बोलने का, 1 by root 1 minus x स्क्वायर, थोड़ा स्टाइल। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है? 1 upon 1 plus x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है? 1 by 1 plus x square. So derivative of cot inverse x minus 1 by 1 plus x square. Derivative of sec inverse x 1 by x root उल्टा है रे, x square minus 1 है, 1 by x root x square minus 1. So what is derivative of cosec inverse x? Minus 1 by x root उल्टा है x square minus 1. So फिर एक बार देखो, आ जाओ इधर, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू a x रेज़ टू a माइनस 1, इससे हमें 4 गिफ्ट मिले। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 by 2 root x, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, छोटा हो या बड़ा। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x log a, log x नहीं बच्चों, log a, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x है। sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, c वाले का आंसर है नेगेटिव साइन। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x है, क्योंकि c का डेरिवेटिव नेगेटिव है। इनवर्स में एक के साथ एक फ्री। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 by root 1 minus x square. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x जस्ट माइनस 1 by root 1 minus x square, c है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 by 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x c है, माइनस 1 by 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 by x root x square minus 1. डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x माइनस c है, माइनस 1 by x root x square minus 1. Please copy them. Please write each formula at least 10 times.
बच्चों दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। जितने भी मेरे पास टॉपर है, स्लो लर्नर्स है, फास्ट लर्नर्स है, सादे गढ़ी है, होशियार गढ़ी है, सब लोग मेरे साथ जो भी सीख के गए, अब यूएसए में है, कौन कनाडा में है, कौन बंगलोर में है, कौन मुंबई में है, कौन कहाँ है, लेकिन सब मेरे पास जो भी मैथ सीख के गए, सब ने एक एक फॉर्मूला 10 बार जरूर लिखा है। जो थोड़े से कम होशियार है वो 20 बार लिखो, 25 बार लिखो। सब फॉर्मूला 25 बार नहीं लिखने का, पहला फॉर्मूला लेने का, एक पेज के 3-4 पार्टीशन बनाने का। अपने पेरेंट कोई टाटा बिरला या रिलायंस वाले अंबानी नहीं है, डोंट वेस्ट पेजेस, या रफ के लिखो चलेगा। पहले एक बार पूरा कॉपी करने के बाद रफ पेज पे डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू ए माइनस 1 जोरदार बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू ए माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर 10 बार, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 10 बार, डेरिवेटिव e रेस टू x 10 बार, डेरिवेटिव a रेस टू x log a, राइट 10 टाइम्स ईच। देन नेक्स्ट फॉर्मूला, और जोरदार बोलो, बाजू वाले बोलेंगे पागल हो गया क्या लड़का, ऐसा है बड़बड़ करके पढ़ रहा है, उनको मरने दो, हमको अच्छा पास लाना है। डेरिवेटिव log x 1/x, बेस e लिखो या नहीं लिखो चलेगा, log x का 1/x बेस e होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x 10 बार लिखो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, c का डेरिवेटिव नेगेटिव, sin inverse x का डेरिवेटिव sin inverse x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos inverse x का माइनस 1/√1 माइनस x, tan inverse x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot inverse x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव sec inverse x 1/x root x स्क्वायर माइनस 1, एंड डेरिवेटिव cosec inverse x माइनस 1/x root x स्क्वायर। अंडरस्टूड? इसके बाद मैं आपको रूल्स ऑफ डेरिवेटिव देता हूं इसी लेक्चर में। Now students, you don't forget to copy the fifth set of formula, पूरा इनवर्स है, थोड़ा 10 सेकंड बैक जाके आपको देखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, उसको आपको जस्ट कॉपी करना है, जब यूज करेंगे तो ज्यादा करेंगे। इफ u v एंड z आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, माने क्या है भैया, u v z ऐसे फंक्शन है जिनकी डेरिवेटिव हमें पता है, यानी कौन, u x रेस टू a रहेगा, v tan x रहेगा, तो z होगा log x, ऐसे सारे u v z है। तो क्या रूल बोलते हैं, पहला रूल, d by dx of u plus v is derivative of u plus derivative of v. Derivative of u plus v is derivative u plus derivative v. Derivative of u minus v is derivative of u minus derivative v. दूसरा रूल, डेरिवेटिव ऑफ k into u, सर कांस्टेंट, अरे अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, बट k के साथ अगर फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ k into u आएगा, k into डेरिवेटिव ऑफ u, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x होगा 2 कॉमन into डेरिवेटिव ऑफ sin x, जो फिर cos x वगैरह जो भी कुछ होगा। तीसरा रूल, डेरिवेटिव ऑफ u into v, अगर आपके सामने दो फंक्शन है u और v, तो दोनों को डेरिवेटिव बांटने का नहीं, एक टाइम एक ही डिफरेंशिएट करो, पहले u को बाहर रखो और डेरिवेटिव किसकी लीजिए, v प्लस, अब v को बाहर रखो और डेरिवेटिव किसकी लीजिए, u, ने एक टाइम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एक तो u या v। चौथा रूल, अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, डेरिवेटिव u into v into z, तो तीनों में से पहले एक ही को डिफरेंशिएट करो, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, तो पहले z करोगे तो uv को बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ z होगा, प्लस अब v की बारी है तो vz को बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ v करो, अब u की बारी है तो vz को बाहर रखो और डेरिवेटिव ऑफ u करो। इसको मैं वक्त आने पर ज्यादा समझाऊंगा, सबके सब, अब जस्ट कॉपी करो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v,
हाँ सर, हमें उसमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन डेरिवेटिव वी। नो, डेरिवेटिव यू बाय वी का अलग ही रूल है। डेरिवेटिव यू अपॉन वी का रूल देखो, ये वी ऊपर जाएगा, वी, ये वी ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ यू वी, डेरिवेटिव यू माइनस यू इंटू वी में प्लस है, तो यू बाय वी में कौन है, माइनस है, वी डेरिवेटिव यू माइनस अल्टीपल्टी यू बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वी। इतना नहीं, ठहरो, कुछ है, मुझे कुछ कहना है। अपॉन ये वी है उसका स्क्वायर। बच्चों ये सब प्रूफ किए, आपको प्रूफ नहीं है सिलेबस में, पर इसके प्रूफ आपके 11-12 के जो फ्रेंड है उनके पास जरूर होंगे। इंटरेस्ट है तो उनसे मंगा लेना, नहीं देखा तो भी चलेगा। ये है डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी क्वोशंट रूल। इतने रूल अभी याद करने, बस इतने फॉर्मूले डेरिवेटिव में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दे, मतलब करो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो जरूर।